سمجھ نہیں آئے گی نا. بعد 1955 میں آپ کو اپنے اختیار سے نہیں بلکہ ملک بھر کے مشہور ڈاکٹروں کے اصرار پر بغرض علاج دوسری بار یورپ جانا پڑا. پہلے ایک دفعہ جا چکے نے. اس سفر میں 30 اپریل کو آپ دمشق پر بذریعہ ہوائی جہاز اترے. علم التعبیر کی اصطلاح کے مطابق اس وقت آپ 2 زرد چادروں میں ملوث یعنی بیمار تھے. الغرض حدیث نبوی کی صداقت پر گویا دن چڑھ گیا. واہ 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 واہ. اور نزول دمشق کا نشان معونی اور ظاہری دونوں اعتبار سے پورا ہو گیا. صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشہ کافی اگر دل میں ہے خوف گرداگر. ایتھے رکھ. جی اسد صاحب. ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਹੈ. ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ. ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਥੋੜੀ ਚੱਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰਾ. ਦੱਸ ਲਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ. ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ. ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ. ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਓ, ਕਾਫੀ ਪਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ. ਅੱਛਾ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ. ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਕਾਦੀਆਨ. ਓ ਯੈਸ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ. ਯਾਰ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ. ਮੈਂ 3-4 ਦਫਾ ਕਾਲ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣਾ ਥੱਲੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕਾ ਲਾ. ਆਹੋ ਮਲਕਾ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ. ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम असद भाई. असद साहब भाई जी बिल्कुल ठीक हाँ, खड़के पे हाँ. ते तुसी सुनाओ, तुसी तारफ कराओ अपना. अच्छा हले भी मैं तारफ दा मुहताज हाँ मलिक भाई. हाँ अली भाई ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ. ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਪਰਾਂ. ओ यार इनू ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ. अच्छा जी हुण मैं ट्रूथ सीकर नू कॉल पान लगा वा. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. या अल्लाह मदद फरमा. एक बारी कॉल चुक लो एक बारी. नहीं आना तक्को जी अल्लाह करे. ओ पहले वो आ जांदा सी जदों भी कुंडी पाओ ना ਉਹ ਕੱਚੂ ਕੁਮਾ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸ ਦੇ ਗਲੀ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਪਤਾ. ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੂ ਕੁਮਾ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਸਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਠੇ ਮੀਠੇ. ਉਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ. ਨਾਸਰ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ? ਟਿਕ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਪੜਿਆ ਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਸੀਹਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ. ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ. ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲकुल पागल हो गए. अच्छा यार सॉरी अभी रमज़ान लगता है आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप यार कोई और डिस्कशन भी हो जाना यार. मिर्ज़ा मैं ठीक है करो सरकार करो. मैं भी तो देखना चाहता हूँ ना
یہ جو کیا یہ روزے کا جو ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کا مکمل طریقہ قرآن پاک میں ہے؟ روزہ رکھنے کا پورا روزہ جو بھی ہے؟ ہاں ہاں، ہاں ذرا مجھے بتائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں کر کے دکھایا ہے نا۔ نبی کریم نہیں، صلی اللہ قرآن علیہ پاک وسلم کی سحری بات کر کرتے رہا ہوں۔ تھے۔ ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قرآن پاک کو اور کون جانتا ہے؟ تو انہوں نے ہمارے لیے دو اجتے چھوڑی ہے نا، ایک قرآن پاک اور ایک اپنی سنت۔ تو جو چیز اگر کہیں سے بھی مسنگ ہے تو اس میں سنت میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں، سینہ بہ سینہ ہمارے تک ان کی سنت پہنچ گئی ہے۔ صبح طلوع سحر سے پہلے، جسے صبح صادق کہتے ہیں، اس سے لے کر مغرب تک وہ روزہ رکھتے تھے، تو وہیں سے ہم نے لے لیا۔ آپ نہیں رکھتے روزہ؟ نہیں، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، جیسے اگر وہ جو آیت اگر ہم پڑھیں تو وہ میں ذرا آیت نکال لوں تو آپ جیسے نہیں، ایک بات مجھے، چلے وہ تو آیت آپ پڑھیں گے، میری بات سنیں نا، مجھے 3-4 باتیں تو بتائیں۔ آپ روزے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتا میں۔ اچھا، نماز پڑھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور شراب پیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ مطلب آپ کو منع ہے قرآن پاک سے شراب پینا یا؟ ہاں، جو آپ کو ذہنی لحاظ سے مفلوج کر دے، ذہن پہ چڑھ جائے، جس میں آپ کے اوسان قابو میں نہ رہے، چاہے وہ شراب ہو یا چاہے کوئی اور نشہ ہو، عہدے کا نشہ ہو، پیسوں کا نشہ ہو، کوئی بھی جو آپ کو بھلا دے کہ ہاں کوئی بھی نشہ، سب حرام ہے۔ سب حرام۔ چرس لے لے، اگر افیون یہ لے لے، نشہ ہو کہ میرے پاس علم بہت ہے، نہیں یہ ایک بھی بتا حرام دو ہے۔ یار عبداللہ، شادی کرتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل۔ تو وہ کہاں سے آپ لوگ کرتے ہیں شادی؟ وہ نکاح کا تذکرہ آیا ہے نا قرآن میں۔ نکاح کا تذکرہ ہے؟ بالکل ہے۔ شادی کا تو نہیں ہے نا، نکاح کرتے ہیں نا مطلب آپ؟ ساری باتیں وہ تو یہ ہمارے ہاں ایسی رسمن نکلا ہوا ہے شادی کا۔ اچھا اچھا، تو مطلب آپ شادی کرتے ہیں، اور آپ جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے کون سی لڑکی دیکھتے ہیں؟ مسلمان یا اپنے جیسی کہ جس کا کوئی دین نہ ہو؟ اصل میں قرآن پاک میں جو ہے نا، زانی اور مشرکہ سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی باقاعدہ وجہ ہے کیونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی میں جیسے آگے آپ کی نسل بھی چلے گی، تو وہ چونکہ مشرکہ ہوگی، زانی ہوگی، تو وہ آپ کی جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کے اس کو، آنے والی نسل کو، دوسری چیزوں کو، تو اس سے کیٹاگوریکلی منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ منع نہیں ہے۔ اچھا، مطلب آپ جب نکاح کرتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان ہے یا کس فرقے سے تعلق ہے اس کا، بس اب وہ لڑکی ہو، بھلے وہ عیسائی ہو، بھلے یہودی ہو، بھلے کوئی بھی ہو؟ میں نے مشرک کہا ہے، مشرک میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہ مشرک نہیں ہے؟ تو وہ تو آپ کو اگر ملک صاحب شرک کا پہلے پتہ زنا دے ہوگا۔ بارے تے پوچھ لو، زنا اینو کینو کہندے نے؟ ہاں، جناح کو بتاؤ۔ ہاں، تو قرآن سے بتاؤں گا میں۔ اب آپ مجھے پہلے قرآن سے اپنا زنا کا بتائیں کہ زنا کسے کہتے ہیں۔ چلو، یہ جو انٹر کورس کرنا ہوتا ہے اس کو، انٹر کورس کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس تو نے بات بتایا۔ وہی ہوگی نا، بس یہ تو بحث یہی اینڈ ہو گئی۔ اچھا، چلیں اب آپ اپنا بتائیں۔ دوسری چیز، ابے یار ایک منٹ نا، پہلے مجھے رمضان آ رہا ہے پہلے، اور یہ مجھے یاد دلانا ہے، اس کا جواب دے کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا میں۔ یہ جو روزے کا، چلیں پہلے میں یہی بتا دیتا ہوں، یعنی کہ قرآن پاک پہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، اسی طرح جس طرح روزہ نہیں ہے، اسی طرح جس طرح نماز نہیں ہے، اسی طرح جس طرح حج نہیں ہے، تو اسی طرح زنا بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے یار آپ ملک صاحب، مجھے یہ تو بتاؤ کہ قرآن میں ہے کیا آپ لوگوں ملک کے؟ صاحب پھنس گیا ہے۔ تو جب اگر آپ کی مطلب بیوی ہو، اب دیکھیں، جب میں بتاتا ہوں زنا کس کو قرآن میں کہتے ہیں۔ سن لو نا، زنا کی معاملت نہیں ہے، سن لو تو یار، کیوں نہیں پھر ہے؟ آپ کس طرح پتہ لگتا ہے آپ کو یہ عورت زناکار ہے؟ اب سن لو نا، سن لو، اب میں ذرا مجھے وہ آیت بتاؤ۔ نکالنے دو، میں آیت نہیں بتاؤں گا، کیونکہ دیکھو زانی کو ڈائریکٹ لنک کیا مشرکوں سے، ڈائریکٹ لنک کیا مشرکوں سے۔ اگر آپ نے وہ آیت بھی پڑھی ہوئی کہ نہیں زانی مثال کے طور، او نہیں مشرکہ، مجھے ایک مثال بتا دینا۔ آپ نے اب ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے تو آپ کیسے تھرمامیٹر سے چیک کریں گے یہ زانی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کھول کے تھوڑی چیک کر سکتا ہے بندہ، کیا کوئی ادھر میٹر تھوڑی لگا ہے؟ یار میں نے کود کے جا کے فوراً تھوڑی کہ اس طرح جس طرح پتہ نہیں آپ کیسے چیک کرتے ہو،
उस तरह थोड़ी चेक करने के थे यार, उसके साथ बाकायदा नहीं, हम तो बातचीत हमारे होती है, लिए आपके पास सारी। हम तो चेक ही नहीं करते ना। देखो ना, अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चेक हो गया, कितनी आसानी से चेक हो गया कि जानी किसको कहते हैं और मुशरिक किसको कहते हैं। अब देखो जैसे लिखा होता है अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, यानी जानिया और मुशरिका, और औ मुशरिकतन व ज़ानियतु ला युनकिहुहा इल्ला ज़ानि औ मुशरिकुन। लेकिन वो तो होती कैसे है जानिया? यार जरा सवाल ये है। सुन तो लो यार, देखो देखो वो डिस्कस करते हैं ना, डिस्कस करते हैं एक बंदे को, क्योंकि मैंने रोज़े का स्टार्ट किया था, रोज़े से ही मुझे जना पे ले गए, निकाह पे ले गए, यही तो सारा मसला होता है ना। क्योंकि मैं रोज़े का पूछ रहा था, तो उसको पूछने कैसे पता चलता है आपको कि ये जानी है? जना होता क्या है? यार देखो आपके पास तो जवाब नहीं है ना, आपने तो हाथ खड़े कर दिया ना, ऐसा ही है। वो हमने तो बता दिया भाई, हमारे नजदीक तो कुरान और हदीस दोनों है। हम तो आपको बता रहे हैं कि हम तो कुरान समझते हैं, हदीस से। डॉक्टर भाई देखो, आप कुरान सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते, तो आप बताएं कि भाई ये कैसे किसको कहते हैं जना, किसको कहते हैं? यार किसी को बोलने दोगे तो बात करेंगे ना। मैंने कहा, मैंने सिर्फ कुरान की भी बात हो रही है, कुरान से आपने कहा नहीं है, सही है ना, कुरान की बात करो, मैंने किसी और किताब की बात ही नहीं की है, आपने हाथ खड़े कर दिए। अब देखो मैंने आपको एक आयत बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता होता है हर चीज़ को समझने में, कि जिस तरह देखो अभी कौवे के बारे में डिस्कस करो, आपने कौवा लिया, मैंने वो बता दिया जो मैंने। अच्छा ठीक है, वो अलग बात है, ये इसका बताओ ना जो बता रहे हैं। सुन तो लो ना यार। अच्छा एक मिनट, वो पहला टॉपिक ज़रा वो हो जाए ना, रोज़ा नहीं है ना कुरान पाक में डॉक्टर भाई? वो क्यों नहीं है? आपको किसने कहा नहीं है? वो तो पूरा तरीका है ये रोज़ा रखने का, सारा तरीका ही है। आप बताएं, आप जो बता रहे हैं वो बताएं, पूरा तरीका है कुरान। हाँ तो पूरा तरीका है, तो ये खैर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे वो आयत है कि जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं कि उसका आ रहा है कि हमने तुम पे सौम फ़र्ज़ किया है, लेकिन उसी तरीके से जिस तरह तुमसे पहले। तो अगर हम अब ये पहले जो थे ये किस तरह सौम रखते थे, ये आपने बताना है ना। आप तो कहते हैं कुरान सब पे नाज़िल होता है। यार देखो डॉक्टर, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना। जब सब पे नाज़िल ही ये किताब होती है तो उससे पहले फिर कौन से रोजे हुए भाई? ये आपने बताना है। नहीं देखो डिस्कशन करते हैं। देखो अजिया भाई, ये पता है क्या, हम लोग पर्सनल चले जाते हैं। यार बताऊंगा ना यार, मैं एक तरफ नहीं ना, पहले बताएं आप। वो बताऊंगा। अच्छा आप क्या चाह रहे हैं, बता रहे जना का बताऊं? पहले जना का बताऊं, ये आप चाह रहे हैं? हाँ जी, जना का बताऊं या रोजा तो नहीं है ना, इसका मतलब है रोजा फारे हो गया है। मैं कह रहा हूँ है, किसने कहा है आपको नहीं है? तो मैंने या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये जो अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम है ये किधर है? ओ यार मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जना का बताएं, आप किधर जा रहे हैं? चले आपको मैं दिखा दूंगा ये सारा कुछ, पहले आप तो अपना जवाब दें। देखें ना, देखो मैंने देखो जैसे नमाज का तो क्लियर कट कह दिया कि हमने आयत ले ली। हम यार आप जना का बता रहे हैं या नहीं बता रहे? फिर इधर उधर जा रहे हैं। जना का आप बता रहे हैं या नहीं बता रहे? किसको कहते हैं जना? मैं बिल्कुल बताऊंगा ना। देखो मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं बताऊंगा, मैं बता के जाऊंगा। मुझे अब तो बताएं आप। चले सही है, क्योंकि वो तो खैर गोल हो गया, चलो क्योंकि ये ले आए। अच्छा आप जो जना को लेते हो वो आपके पास आयत नहीं है, वो जो सेक्स लेते हो ऐसा ही है? नहीं है ना? नहीं, हमें तो हदीस ने बताया ना। हाँ तो कुरान, ये नहीं बोला करो ना, कुरान में नहीं है ना। ओ भाई हमारे लिए कुरान हदीस कोई फर्क है ही नहीं। कुरान की तफसील हमें हदीस बताती है। डॉक्टर जिस तरह आपका दिमाग आपको बताता है, अपने अल्फाज की तफसील आपके दिमाग पे नाज़िल होती है, आप कहते हैं, इस तरह हमें उस हस्ती ने बताया जिस पर ये कुरान नाज़िल हुआ। अच्छा थोड़ी सी कुछ आयत है, अब आप बताएं जरा किसको कहते हैं जना। हाँ अब पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप जैसे कुरान पाक में है 17 की 32 में, सूरह इसरा जो बनी इसराइल की है उसकी 32 में है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीलन। अब देखो यहाँ कैटेगोरिकली डिक्लेयर कर दिया गया कि जना क्या है, फाहिशा है। और मैं अपना एक और ऐड कर लूँ कि जब ये जो गोल ता आती है तो ये कलेक्टिवली हर किस्म की फहाशी के लिए आ जाता है। तो यहाँ जना को
वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन, तो जना क्या है? फाहिशा है। और क्या है? वसाअ सबीला, और जो रास्ते से ना गुम कर देती है, आपको हटा देती है। तो डॉक्टर, क्या आप मेरे से एग्री करते हैं इस बात पे? ओहो भाई, आपने बताना है कि ये जना क्या है। आपने कहा जी ये इसको फाहिशा कहा गया है, ठीक है जी, आगे नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना। पता चलेगा जना क्या है। नहीं, ये तो मान लिया ना कि जना फाहिशा है। तो भाई वो तो कुरान में लिखा हुआ है, वो तो साफ बात है क्या जना? सवाल ये है। हाँ, अभी सबर करें ना। पहली चीज अल्लाह ताला कह रहे हैं वो फाहिशा है और सा सबीलन है। ये दो पॉइंट्स जहन में रखिए कि जना, अल्लाह पाक कह रहे हैं वला तक़रबु ज़ना इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला। अब देखिए कुछ और आयतें मैं आपको इस लिहाज से पेश करता हूँ। देखिए नहीं, आप वो यार सिर्फ ये बता दें, इतना लंबा क्यों जा रहे हैं आप? दो हरफी बात है, बता दें भाई इस चीज को जना कहते हैं और ये यहाँ बात लिखी हुई है, बात खत्म। नहीं, मैं देखो डॉक्टर, मैं इस तरह बात नहीं करता ना। मैं एक एक आयत आपके सामने रखूंगा। अगर आपने वो कहना है तो आप मैं रख देता हूँ जी, आपने मैं रख देता हूँ जी आपको। मैं बता दूं आयतें सारी? हाँ बता दे, चले मैं सारी बता दूं, फिर आप बता देंगे जना किसको कहते हैं। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, आप मुझे यार, आप बीच में आ गए, इतनी देर में तो मैं बता भी देता। देखो लोगों को समझ में आना चाहिए ना। कुरान पाक पढ़ रहे हैं यार, कोई वो तो लड़ाई तो नहीं है ना। आप हर दफा इसको लड़ाई ले लेते हो यार। मैं भाई भाई कह के आपको कह रहा हूँ, भाई जिया भाई, सही है ना? उन्हें मुझे जरूरत नहीं है, आप ना कहें, कोई मसला नहीं। नहीं, मैं तो कहता हूँ भाई, आप बताएं जो आपसे पूछा है वो बताएं। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीलन। अच्छा, यहाँ कैटेगोरिकली इन्नहु कहा है, बेशक वो क्या है? फाहिशा। और क्या है? अच्छा, व साअ सबीलन। ये कैटेगोरिकली बता दिया कि जो ज़ना है वो फाहिशतन है और रास्ते से आपको दूर करती है। व साअ सबीलन, सही है। अब एक और मिसाल लें जरा। सूरह नूर में उसकी आयत नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। फिर देखे जानी और मुशरिकों को इकट्ठा लेके आया अल्लाह, औ करके, या जानी या मुशरिका। और फिर आगे देखें वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन। फिर देखें जानी और मुशरिक को फिर एक साथ ले आया। तो यहाँ एक तो बात कैटेगोरिकली। अच्छा, आगे क्या लिखा है? वहर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, हराम है, हराम है ये मोमिनीन के लिए, सही है। तो देखो जानी और मुशरिका मुतरादिफ के तौर पर आ गए। पहली चीज मुतरादिफ के तौर पे, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ रिपीट कर, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जानी और मुशरिक किस तौर पे आ गए यार? सुन तो लेना। अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। ज़ानियतन औ मुशरिकतन, इसका तर्जुमा करें। जानिया और मुशरिका, और नहीं है, दोबारा गौर से देखें। या मुशरिका, या जानिया मुशरिका, या मुशरिका। तो आ गया कि इन दोनों में से किसी से भी नहीं वो करेगा। तो इन दोनों आप कुछ बता रहे थे कि दोनों मुतरादिफ हो गए। हाँ, मुतरादिफ हो गए ना, जानियतन और मुशरिकतन, सही है। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, पहले कान पकड़ लें और उसके बाद अगली बात करते हैं। कल आप कह रहे थे कि दो अलग अलग अल्फाज का एक मतलब मानी नहीं हो सकता। आज आप कह रहे हैं कि जानिया और जनाब मुशरिका ये मुतरादिफ हो गए। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਫੜੋ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਅਸੂਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, दोबारा मैं रिपीट कर दूं। मैंने रिपीट नहीं ना बाद में करना, पहले इधर कान पकड़ के माफी मांगे कि कल मैंने जो बोंगी मारी है मैं उससे रिव्यू करता हूँ। अच्छा, बात तो कर लेने नहीं डॉक्टर भाई, नहीं ना, अब आपने खुद कहा है, मैंने 2 बार पूछा। नहीं लेता हूँ, ये कोई और लेते हैं, बनी इसराइल और वो लेते हैं भाई, मैं ऐसा नहीं लेता हूँ यार। ओहो भाई, आपने खुद कल कहा है। अमन नजीर भाई माइक को ओपन करें अगर मौजूद है तो। कल इसने कहा नहीं, आप मेरी रिकॉर्डिंग ले आए। ये बनी इसराइल ने कैटेगोरिकली कहा था, मैं उनसे भी वो करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं कुरान में जो बनी इसराइल पे और आप पे अलग अलग नज़ूल होता है। नहीं वो ठीक है डॉक्टर। यार डॉक्टर, बात तो करने दो यार, मैं उस तरह नहीं लेता हूँ। आपको किसने कहा है?
अगर अच्छा जी, कानून मैं इधर उनसे इसकी भी कहता रिकॉर्डिंग कर हूँ, लें जी, सुन इसकी लें, रिकॉर्डिंग कर हाँ लें जी। दोबारा कर लें, देखें अब देखें आप इस बात को कबूल करते यार हैं कि डॉक्टर आप पे डेनियल यार और वकास बदतमीज तू पे, किधर ले जाता है बात को यार, वो अच्छी एक मेरी मिनट बात कर रुकना, रहा है यार। हेलो आप पे और वकास पे अलग अलग नजूल होता है, आप इस बात को इकरार करते हैं? नहीं ये बिल्कुल सही है, ये सही है डॉक्टर, ये आप मसलन कोई जरूरी नहीं कि सारे ठीक है ना, आप सब ठीक है, तो ये बताएं कि दोनों पे अलग अलग नजूल होता है, अलग अलग मतलब नाज़िल होते हैं दोनों पे। यही समझ लो। हाँ जी खान साहब। अच्छा देखिए, चल खान बोल। इसी तरीके से जैसे मैंने गुराबन का कहा था ना, गुराबन नहीं क्या वो है छोड़े ना यार, उसको, अभी पहले इसका यार फैसला कर लेने के डॉक्टर बाद का भाई फैसला हो रहा है बोलने खान दो साहब। यार, तुम क्यों मुनाजरे में चले जाते हो? वो तो यार बात एक सारा बात खराब का कर देते फैसला हो। हो रहा है ना, आप इधर एक आप स्टेटमेंट दे मेरे दें साथ कि 1-on-1 आ जाए, आप मेरे साथ, मैं आपको यार साबित करूंगा कि आप तहरीफ कुरान और करते टायराड हो। खोल अभी दिए, ये और टायराड टायराड खोल बात, दिए। अभी यार ये क्या खोल बातें गए हो रही है यार? टायराड, ओ हेलो खान टायराड साहब, खोल गए। ये ऐसे ना बात करें यार, भारी मैं भारी नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजे से अहमद जना नजीर से, भाई, अब देखो ये आ गया कल जो वो बात मैंने दूसरे कही नहीं नजूल है। वाला, एक मिनट चुप करो जी, चुप करो। मुझे कल जरा वो कह रहा था आपके सामने कि ये बिल्कुल गलत है कि दो अलग अलग अल्फाज हो और उनका मतलब मानी मफहूम एक ही हो, ऐसी बात है ना जी? हाँ हाँ ठीक है, आज ये कह रहा है कि जानिया और मुशरिका ये दोनों मुतरादफ है, हम मानिए एक ही मतलब है इनका, यानी ये कह रहे हैं कि इस पे अलग नजूल होता है, उस पे अलग नजूल होता है, एक ही डॉक्टर बात भाई, है, डॉक्टर एक ही कुरान पाक है, इस पे मानी मफहूम अलग अलग नाज़िल हो रहे हैं, उस पे अलग नाज़िल हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, एक मिनट मुझे इस बात का जवाब लेने दें। अपना खान साहब, जी आप साहब, इस बात से मुत्तफिक हैं जो उन्होंने कही है कल वकास साहब ने? देखिए मैं वकास साहब का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उनसे भी कह चुका हूँ कि कुरान जब एक लफ्ज़ की डिफाइन कर लेता है मैं वही लेता हूँ, मैं वो लेता हूँ। नहीं अब नहीं, देखो मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ। यार, वो कह रहे, सुने तो सही ना, आपकी बारी है, आपने बयान करना है, लेकिन बात तो समझ लें वो क्या ना क्या चाहते हैं। वकास साहब कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि दो अल्फाज मुख्तलिफ हों और उनका मानी सेम हो, ऐसे हो नहीं सकता। ये बात सही है कि आप इससे डिसएग्री हैं? नहीं, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता, मैं मुतरादिफ लेता हूँ। जब कुरान में जो डिस्क्राइब कर देता है ना अल्लाह, अब देखो मैंने जानी का डिफाइन कर रहा हूँ, अल्लाह ने लिखा हुआ है आयत में, मैं उसको क्यों चेंज करूंगा? यानी आप उससे वकास भाई से इख्तलाफ रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शार्ट खान मका दे बिल्कुल रखते हैं बिल्कुल भाई, मेरा उन चीजों इस चीज पे कोई वो एग्रीमेंट आगे नहीं है आगे किसी के करें साथ। बात, आगे करें। हाँ बिल्कुल। चलें जी, ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा और जी, अब मैंने आप ऐसा बता रहे कहीं भी थे नहीं कि कहा। जानी किसको कहते हैं, जना किसको कहते हैं जी? आगे बढ़ें जी। हाँ अच्छा, मैं बता रहा हूँ, और इनके पास कुरान में से कोई दलील नहीं है जो ये सेक्स लेते हैं जी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की किसी आयत में ऐसा नहीं कहा। अगर कहा है कि इसको इस तरीके से सेक्स करना कहते हैं हो तो खान यार साहब, पेश हमने करें। आपको देखें पहले बता दिया कि यार, हम तो मैं- हदीस से समझते हैं। हाँ तो नहीं है ना कुरान में, हाँ, बात खत्म हो गई, हदीस से खत्म समझते हुआ, हैं। हाँ। अब आप बताएं किसको कहते हैं जना? जिसको भी सिंपल सा भी तर्जुमा आता होगा, मैंने बताया वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन, पहले फाहिशा ठीक का है। आ गया, सही है, डिक्लेयर किया, फिर ठीक है। कह रहा है मुशरिका, उसके साथ मुशरिक भी ऐड कर दिया, सही है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि कैटेगरी के लिए कह दिया, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो फाहिशा हो, सास बीला जो हो या मुशरिका हो, ये तीनों जानी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। सही है ना। क्या क्योंकि देखें, ठहर समझ आ- कहते हैं आयत जी में- आयत में फाहिशा, सासबीला और मुशरिका तीनों जानी होते हैं, ठीक है जी। दोबारा मुशरिका देखें, मैं मुशरिका हाँ भी जी, जानी मुशरिका भी। नाजिर हाँ जी। आमिर भाई देखें, ये सूरह बनी इसराइल है, इसकी 32 आयत है, इसमें लिखा हुआ है वला तक़रबु ज़िना इन्नहु, बेशक वो, काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, तो फाहिशा और साअ सबीला तो यहाँ से आ गए, सही है। फिर ठीक हो गए। आता है सूरह नूर की 3 में, उसमें लिखा, सास सबीला की भी वजाहत कर दें क्या? अभी करूंगा ना, मैं करूंगा। वो कह रहे हैं कि जो सास बीला होता है आपको पता है वो सबील- जानी होता है। आपको पता है वब्न सबील, और ये सबील किसके लिए आता है? क्या? अच्छा ठीक है ना, अल्लाह के रास्ते से। आप इसको अल्लाह के वो रास्ते छोड़ देना, आप अपना स्टेटमेंट दे दें कि भाई ये फाहिशा, जो फाहिशा भी मैं हो, अपना- सासबीला भी हो और मुशरिका भी हो, ये जानी होते हैं। सुन ले ना, स्टेटमेंट दे दें बस। सुन ले दूसरी आयत में पेश कर रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है, ये अल्लाह की आयत कह रही है, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, और आगे फिर इसको फिर फर्दर आगे
वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकिन वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन। तो अब आप देख लें कि यहाँ मुशरिका भी आ गया, मुशरिक, सही है, सबीला भी आ गया और फाहिशा आ गया। अब इसको जरा आगे लेके चलते हैं। नहीं, पहले ये नहीं, अभी मुझे नहीं समझ आई ज़िना किस अमल को आप कह रहे हैं, ये सवाल था। आमिर भाई आप तर्जुमा कर दें, आपको तर्जुमे से क्या समझ में आया? मुझे तो आपने तर्जुमा किया है मेरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आई है ना, हाँ, इसलिए तो दोबारा सुन ले ना। और जना के पास भी न फटको, वो है वो क्या है? ज़िना है क्या? पढ़ने तो दो आगे। इन्नहु काना फाहिशतन, वो फाहिशा है और सा सबीला है, सही है, एग्री है इस बात पे? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है ज़िना है क्या, मैं पूछ रहा हूँ ज़िना किसको कह रहे हैं आप? सुन तो लें आमिर भाई, दोबारा सुने गौर से। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व सा सबीला। ज़ना जो है बेशक वो फाहिशा है और सा सबीला है, यानी कि अल्लाह के रास्ते से हटाने वाली जो चीज होगी वो ज़िना है। और फाहिशा का मैं अभी आपको बताता हूँ, जरा आयतों से क्लियर करूंगा। और एक और जगह बता दिया कि वो जो खान अब्दुल, एक सेकंड खान अब्दुल वहीद भाई मेरी बात सुनो। ज़िना कोई अमल है, कोई यानी फेल है या इसम है या ये क्या है, थोड़ा ये बता दें। देखें, जब आप किसी को रास्ते से हटाते हो, सीधे रास्ते से गुमराह करते हो, तो ये बाकायदा एक फेल है, आप ये काम करते हो, सही है ना? फिर इसको फेल कहेंगे ना। ज़िना एक फेल है जिसका आप कह रहे हैं कि इस आयत में जिक्र हुआ है कि ज़िना के करीब ना जाओ, यानी इस फेल के करीब ना जाओ। ये फेल क्या है, यानी बता रहा हूं ना, भी समझ तो करें। इसको एक फाहिशा भी कहा गया है और इसको मुशरिक भी कहा गया है। सा सबीला और मुशरिक तो बिल्कुल वाज़ेह है। जो भी शिरक करता है, शिरकिया अमल करता है, और जो सा सबीला अल्लाह के रास्ते से गुमराह करता है, वो ज़ना है, वो उसका नाम ज़िना है। हाँ, बिल्कुल ज़ना है। नहीं, आयत बता रही है ना। नहीं, वो दलील आपकी अपना दसो, आयत दे सिर ना मले। काना फाहिशतन व सा सबीला, वो अल्लाह के रास्ते से गुमराह करती है, सही है, और फाहिशा है। और अगली जो सूरह नूर की आयत में, उसमें दो जगह अल्लाह ने कहा कि ये मुशरिकाना अमल है। ठीक है, एक मिनट समझ आ गई मुझे। जो समझ आई है ना, मैं पूछना चाहता हूँ कि सही समझ आई है कि गलत समझ आई है। आपने फरमाया कि जो अल्लाह की राह से भटकाए उस अमल का नाम ज़िना है। मिसाल के तौर पर मेरी नज़र में, हो सकता है कादियानी ना माने, मेरी नज़र में मिर्ज़ा कादियानी मुसलमानों को असल राह से भटका रहा था, ज़िना कर रहा था। बिल्कुल यानी मिर्ज़ा कादियानी आपके नज़दीक ज़िना कर रहा था। इस तरह जो भी ऐसा अमल करता है वो इस अमल का नाम ज़िना है। बिल्कुल ज़ना है। ठीक, अब समझ आ गया। अच्छा, एक तो ये हो गया कि एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट। अच्छा, आपने अभी, आपसे मैंने पूछा कि भाई आमिर भाई ने पूछा था कि वकास ने कल कहा है कि भाई कुरान पाक में दो अलग अलग अल्फाज के एक मानी नहीं हो सकते। आपने कहा मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, यानी वो भी अल्लाह ताला के रास्ते से लोगों को हटा रहा है, जो कह रहा है कि अलग अलग मानी एक मानी नहीं हो सकता, वो भी जानी है। जो भी करेगा इस तरह वो जानी है, यानी वकास जानी है। मैंने कहा जो भी करेगा वो जानी है। वकास का अमल आपने खुद कहा ना, मैं डिसएग्री करता हूं। आप दोनों में से एक को जानी है। जैसे मैं आगे लेके चलता हूं इसको, जरा आगे बात करते हैं। दोनों में से एक तो है ना, उसकी नजर में आप जानी है, आपकी नजर में वो जानी है। सुन ले, अब मेरा जवाब सुन ले। जिस तरह काला कौवा बताया काएं और उसको अल्लाह के नाम पे लगा दिया कि अल्लाह ने मबूस किया है, ये सारे जानी हैं, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने वो नहीं पूछा। ये देखे, ये आपका, सुन ले, देखे ये असूल आपका है, आप इसको हम पे लागू नहीं कर सकते। ये आपका असूल है, सुन लेना। आप अपना असूल हम पे नहीं लागू कर सकते। हम नहीं कहते इस चीज को जना, जो भी अल्लाह के रसूल से टाइप हो जानी, हम नहीं कहते, आप कहते हैं। डॉक्टर, तो आप बताएं कि वकास और आप में से कौन जानी? आराम से बात करते हैं। आपने अगर उसके जो मतलब है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, वो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो फिर बात करते हैं ना।
उसको ले आए, अगर वो मुझसे कॉन्ट्रेडिक्ट करता है उसके लिहाज से। यार आपने अभी कहा है, आपने खुद अपनी जुबान से कबूल किया। तो आप भी आते हैं ना उसमें, जो काला कौवा आपने काहे करने वाले। यार हम पे तो आपका फतवा लगता नहीं है ना, क्योंकि हम तो आपकी डेफिनेशन नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह के रास्ते को अल्लाह कुरान का रास्ता कहता है, आपने कहा रोजा नहीं है कुरान। भाई हम आपकी डेफिनेशन ये नहीं मानते, ये हमारा नहीं उसूल कि हर रास्ते से भटकाने वाली को जुनाह कहते हैं, ये हम नहीं कहते, आप भी आते हो। तो भाई आप कहते हैं आप तक महदूद है ना। यार आगे चलो ना, जानी बताने वाले लोगों को पता लगे पहले कब। ये कोई मेरा मतलब है नहीं, हमें तो कह रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं कह रहे, बकास को क्यों नहीं कह रहे, को क्यों नहीं कह रहे? कसम खुदा की तुम लोग पर्सनल यार देखो, जानी को आगे पहुंचाने दो, जो भी ये अमल करता है वो जानी है, सही है। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा चौधरी साहब का फैसला करा लो, चौधरी साहब भी जानी निकले, वो उनसे करा दो। पता करो इन कोड़े में मारा। यार खुदा दा बात। अच्छा जी, देखो यार डॉक्टर एक बात को ना जगह तक तो पहुंचाओ। बकास नू कोड़े किन्ने मारने ने, ये दसो पहले। उसको 10,000 मारो। चौधरी साहब है जे, और उसके अलावा 1 लाख उनको लगेंगे जिन्होंने कौवा किया है। ओहो, वो तो ਤੁਹਾਡਾ असूल है ना कि ਇਹਨੂੰ ज़ना ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਮਾਰਨੇ ਨੇ। मेरा उसूल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ नहीं ਨਜ਼ਦੀਕ होती। ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ असूल ਤੁਹਾਡੇ लाइन से अजीब देखो यार, देखो डॉक्टर जना को तो पूरा करने दो यार, जना को तो पूरे करने दो। चौधरी साहब ए जेड़ा मैं ना तमाशा कुरान वाला हैप्पी भी निकले यार। कुरान पाक में कर दे। डॉक्टर यार ये बात तो पूरी करने देखो, अल्लाह की भाई पहले अल्लाह का हुक्म मानने नहीं तो आप भी जानी है, उनको कोड़े लगाओ नहीं, अगर आप मानते तो आप भी जानी है, आप भी रास्ते से भटकाओ। इन्हां दे नजदीक जना अगर कोई करे तो उन्हें कोड़े। आपका देखो, आपका जना तो है ही नहीं ना, आपका जना फारिग हो गया, आपका नमाज फारिग हो गया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ सुन तो लो, जो कुरान पे दावा करते हैं वो नमाज भी फारिग, रोजा भी फारिग और हज भी फारिग है। ओ यार खान हज भी नहीं है उनके पास। अच्छा सुनो, आप पहले उसको कोड़े मारे, अगर नहीं मारते तो आप भी जानी हो गए, क्योंकि आप भी रास्ते से भटका रहे हो। अच्छी बड़ी बात हो रही है यार। देखो यार, पूछ लो की सजा जी जानी दी, कुरान की सजा लिखी। जानी का मुशरिक का जो शिरक करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात के साथ गैरुल्लाह के अहकामात पिलाते हैं, जैसे कि इन साहब ने कहा रोज़ा कुरान में नहीं है लेकिन हम बाहर से ढूंढ के लाएंगे, जैसे इन्होंने कहा हज कुरान में नहीं है लेकिन हम बाहर से ढूंढ के लाएंगे, जैसे इन्होंने कहा जानी नहीं है लेकिन हम बाहर से ढूंढ के लाएंगे, जैसे इन्होंने कहा नमाज नहीं है लेकिन हम बाहर से ढूंढने के लाएंगे। उसी तरीके से जानी की सजा तो कुरान करीम में मौजूद है। तो यार जानी की सजा है, आपने कहा कि जानी की कहते किसको है यार? सजा है कुरान पाक दे। उन्होंने पूछ लो था कोई महीना और होना ना, अब जेड़ा भी महीना है वो करवा लांगे। की महीना ये दा यार। अच्छा हुन ज़रा भाई ध्यान रखियो, जानी ते मुशरिक ने मुतरादिफ कह देता है। मुशरिक दी फाहिशा भी है, फाहिशा भी है। मुशरिका कोलों भी मरवाने जे तुसी नहीं मार दे ते फिर तुसी भी रास्ते तो भटका रहे, तुसी आप जानी लो ना, पहले पूछ तो लो जानी की सजा है यार। आगे तो चलो ना, सुने आगे की तो चलिए बस। फाहिशा ओ भाई पहले इसमें तो निकल फाहिशा क्या होती है? खान साहब पहले वो आपने बता दिया वो जानी होती है। फाहिशा है, सही है। खान साहब पहले ये बताएं यार, सुन तो लो। खान साहब पहले ये बता दें जानी की सजा क्या है कुरान में। जो इस वक्त आप इस सजा में मुब्तला है ना, कि आपको कुरान समझ में नहीं आ रहा, कि ना नमाज है न रोजा है, ये आप अपने उसी में जल रहे हो, यही सजा है। अच्छा तो यार यार कौन रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप बताएं ये जो कुरान पाक में लिखी हुई है सजा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा, ये क्या है? पहले मैं अच्छा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे ही हम इनके सामने कुछ बयान करने लगते हैं सारे स्टूडेंट बन जाते हैं। तो यार स्टूडेंट क्यों बन जाते हैं? अभी हम क्योंकि आप हमें नहीं मानते तो हमने स्टूडेंट ही बनना है यार। मुझे जब आप हमारी नहीं मानते, अपनी बताने को तैयार नहीं है। देखो आप बता दें ये जो सूरह नूर में सजा बयान हुई है ये क्या है? बहुत अच्छी सजा बयान हुई है, बहुत अच्छी सजा बयान क्या है क्या ये सजा? ये जो शिरक करते हैं, यानी कि ये जो अल्लाह के साथ गैरुल्लाह के अहकामात को मिलाते हैं, और जो अल्लाह का यार बता रहा हूं मैं, डॉक्टर 1-on-1 आजा बस, तू 1-on-1 आजा, कि इस तरह बात नहीं होती है, भागता है। बता दे ये जो जानी और जानिया की सजा लिखी है, कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम, हाल हुंदा जी इन्हां दा
یہ ہیں جی بات کرنے والے یار ضیاء بھائی جس پر یہ کل چیلنج کر رہا تھا 1-on-1 کہ سب پر نزول ہوتا ہے، وہ تو اس نے آج خود ہی مان گیا کہ سب پر نزول نہیں ہوتا، میرے پہ نزول اور ہو رہا ہے، یہ میں نے کہا ہی اس پہ نہیں اور ہو رہا ہے، ہے۔ میں نے کہا ہی نہیں ہے یہ وہ آپ کے وکاس پہ بم اور گیا ہو آپ رہا ہے کی۔ نا۔ او بھیا آپ نے اس سے کس پر پوچھو نا ڈیبیٹ کرنی تھی؟ آپ نے تو اسی پہ ڈیبیٹ کرنی یار، تھی، مجھے سب تو پہ خود نزول سمجھ ہوتا میں ہے۔ نہیں آتا کہ میں تم سے کالے کوے پہ ڈیبیٹ کروں یا میں تم سے قرآن کے آپ کسی چیز پر بھی نہیں کر سکتے۔ تم لوگ کہیں ٹکتے نہیں ہو، تم لوگ ایک پرسنل اٹیک کرتے یار ہو، دوسرا کچھ بھی نہیں تم لوگوں کے کیا پاس۔ نام ہے آپ کا خان صاحب، اس بات کا پہلے فیصلہ کر لینا، یہ جو قرآن نے زانیہ کی سزا بیان کی، زانی اور زانی، یہ ہے کیا آپ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک تو کوڑے ہیں، آپ کے اب سن نزدیک لینا، کیا ہے؟ سن لے، آپ کو سمجھ میں آیا جو میں نے کہا زانی کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں، آپ نے جو بتا دیا اس کے مطابق میں کیا پوچھ رہا بتایا؟ بتاؤ کیا بتایا؟ ہوں۔ آپ نے بتایا کہ مشرک بھی زانی ہے اور ہاں، جو مشرک کیا ساس ہوتا ہے؟ رستے سے اللہ کے مشرک کس رستے کو سے کہتے ہٹائے ہیں؟ وہ بھی زانی ہے۔ ہاں، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، مشرک کس ہاں کو ٹھیک کہتے ہے، ہیں؟ وہ ابھی بعد میں ٹھیک ہے۔ دیکھیں گے، پہلے ان کی نہیں سزا نہیں نہیں دیکھیں۔ نہیں، پورا زانی کا مشرک میں جو اللہ کے ایکسپلین ساتھ کروں گا کسی آج۔ کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ کس طرح شریک ٹھہراتا ہے؟ احکامات کہ میں، ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ احکامات میں شرک ہے؟ نہیں احکامات میں تو شرک ہوتا ہی نہیں ہے، حکم تو ایک ہی بندہ دیتا ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ حُکْمِهِ أَحَدًا۔ او یار، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بتا دیں زانی اور زانیہ کی سزا تو ضیاء بتا صاحب دیجیے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات میں شرک نہیں ہے، ایسا ہے؟ تو یار حکم تو ایک بندے نے دینا، ایک نے دینا ہوتا ہے نا۔ نہیں دیکھو ذرا آہستہ آہستہ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ کیا ضیاء رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے تو احکامات یار میں یہ نہیں کہہ رہا، جان نہ چھڑوائیں خان صاحب، جان نہ چھڑوائیں، یہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جس چیز کا جواب نہیں ہوتا وہاں جان چھڑا کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا مشرک کو زانی کہتے ہیں اور جو رستے سے بھٹکائے اللہ کے رستے سے وہ بھی زانی ہے۔ قرآن نے زانی اور زانیہ کی سزا بیان کی ہوئی ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے سزا؟ ہمارے نزدیک تو یہ کوڑے مارنا ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، سب سن رہے ہیں، قوم سے بات شروع ہوئی، مجھے ٹوکنا نہیں، اگر ٹوکنے کا بھی ٹوک دے، والی گل ہی نہیں ہے بھائی، جو بات ہو رہی ہے اس کا جواب نہیں دے، پھر آپ کبھی ادھر چلے جاتے کبھی ادھر چلے جاتے، 1-on-1 کر لیں میرے سے بات۔ چلو اب میں شکریہ ادا کرتا ہوں ضیاء جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ رسول لگایا ہوا ہے۔ اب بتائیں خان صاحب، چلے آپ نے مجھے زانی اور زانی کی سزا بتانی ہے یا نہیں بتانی؟ یار زانی میں بتا رہا ہوں، تم اتنے مشرکوں کا انہاں کو سزا پوچھو تو پھر انہاں کو سزا لاگو کرو، جو لاگو نہیں کر دے آپ اللہ دے رستے تو ٹھہرنے بھی زانی۔ دیکھیں، جب تک زانی ڈکلیئر ہی نہیں ہوگا، نجف چپ، اس کو سزا کس چیز کی دیں گے؟ تم لوگ دیکھو، ابھی انہوں نے شرک، دیکھو آپ نے ڈکلیئر کیا کہ جو رستے سے بھٹکائے آپ نے کر دیا ڈکلیئر۔ اللہ کی آیتیں کہہ رہی ہیں، سن تو لو، وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ کے رستے سے بھٹکائے وہ زانی ہے۔ کیسے بھٹکاتے ہیں نا، یہ بھی بتاؤں گا میں، صبر کرو، ابھی صبر کرے نا۔ وہ ایسے بھٹکاتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کے دو الگ الگ الفاظ کا ایک ہی معنی نہیں ہو سکتا، دوسرا کہتا ہے ہو سکتا ہے، اب دونوں میں سے ایک تو بھٹکا رہا ہے نا۔ چلیں آپ یہ لے لیں، آپ کی خوش فہمی ہے، لے لیں۔ دونوں میں سے ایک زانی ہے، اس کو سزا پہلے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یار آگے نیت جلدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کوڑے ہیں، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پھر وہ سزا لاگو کروائیں۔ بہت بہت شکریہ، اب یہ مجھے بولنے دیں گے اور میرے بیچ میں نہیں بولیں گے، میں یقین کرتا ہوں۔ جو کالا کوا، جو یار دیکھو، بات نہ طریقے سے ہونی چاہیے، دوسرے کو موقع دینا چاہیے۔ آپ لوگ نا ایک پرسنل اٹیک اس پہ لگ جاتے ہو، بھائی جس نے کہا ہے جاؤ اس سے پوچھو، یار میں کسی کا رسپانسیبل تو نہیں ہوں نا، اس سے وضاحت مانگو۔ اور میں نے کہا اینڈ پوائنٹ دیکھنا چاہیے کہ اینڈ پوائنٹ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھو، جیسے میں نے یبحث فی الارض ابھی جو غراب کا دکھایا اور آپ نے کوا دکھایا، زمین آسمان کا فرق ہے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے اب میں سبیلا اور جو آپ زنا سیکس لے رہے تھے، جو کہ قرآن میں آپ خود کہہ رہے ہیں ہی نہیں، اور جب میں دکھا رہا ہوں کہ قرآن میں وہ کس کو کہہ رہا ہے، اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے مشرک جو اللہ کے احکامات کے ساتھ اس غیر قرآنی احکامات، غیر قرآنی، غیر کتابی احکامات، غیر وحی الہی احکامات کو ملاتا ہے، وہ ہے شرک۔ اور سبیلا جو اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکاتا ہے، غلط لے کے چلتا ہے۔ اب فحشا کی بات آ گئی، فحشا کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھو، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اب یہ جو شیطان کے احکامات ہوتے ہیں، یہ جو شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے، شرک کرنے کو کہتا ہے، جو اس کے امر کے ساتھ آپ لگ جاتے ہو، اس کو فحشا کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہترین آیت ہے فاحشہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लाह कह रहे हैं कि जो अल्लाह के अहकामात के साथ ऐसी बातें करें जो अल्लाह ने नहीं कही हो, जो अल्लाह ने नहीं कही हो और जो उसको इल्म भी नहीं हो, यही फाहशा है। इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। ये है फाहशा कि जो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया हो और वो बगैर इल्म के उसके बारे में बोले, तो यह है फाहशा। तो जानी समझ में आ गया कि जानी कहते हैं ऐसा अमल, ऐसा हुक्म कि वो अल्लाह ने उसका हुक्म नहीं दिया हो और वो बगैर इल्म के, बगैर तहकीक के उसके बारे में बोले, प्लस जो अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, इस सिराते मुस्तकीम से जो आपको भटकाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने शिर्क कहा। शिर्क तो बहुत डिटेल से है कुरान पाक में, लेकिन मैं आपको सिंपल से बता देता हूं कि जो भी अल्लाह के अहकामात के साथ गैर कुरानी अहकामात, वही अल्लाह के अलावा उसको मिक्स करता है, इसको शिर्क कहते हैं। और ये डिटेल है जना की। एक बात ही काफी है, इसको समझ ना दें, पहले जना समझ लेने, शिरक को बाद में समझ लें। जो आपने जना की तारीफ बयान की है, इस तारीफ की रूह से जो बुरा अमल, ये बुरा अमल है ना जना, जिसको आपने बताया अल्लाह की राह से भटकाना और वगैरह वगैरह, इसकी सजा क्या है ये जानना चाह रहे हैं। मतलब अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना कि जना क्या है, ऐसा ही है। हाँ, आपने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से कि ये जना है। नहीं, हम उसको मानते नहीं है, लेकिन आपका मौक़िफ़ आ गया कि इसका नाम जना है। हाँ चलें, सही है, उसमें क्या आगे बैठ जाएंगे बस। चलें, ये तो मैंने इनको बता दिया अल्लाह की आयत कि क्या कह रही है। अच्छा, अब ये जो जना, जो आप एक मिनट में ज़रा आयत खोलो ना जो आप बोल रहे हो। हाँ, इसकी जो यहाँ बताया गया ना, उससे मैं कोई डिसएग्रीमेंट नहीं करता हूँ। कर दो क्या? ये जो कोड़े वोड़े मारने हैं, ये 100 क्या 200 कोड़े मारो इनको। नहीं, आप अपनी दलील पेश करें ना, उनकी ना बयान करें, अपनी दलील पेश करें। यार लिखे कुरान पाक को मैं कैसे, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्लु वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दतिन वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाहि, फी दीनिल्लाहि, यहाँ से भी दलील मिल रही है। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। अब ये जो जना करने वाले, चाहे वो औरत हो मर्द हो, 100 कोड़े लगाओ। और अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के दीन के मामले में फी दीनिल्लाह है, उन पे तरस खाने का कोई जज्बा तुम पर गालिब ना है। और ये भी चाहिए कि मोमिनों का एक मजमा इनकी सज़ा को खुली आंखों से देखें। जी अच्छा, ये इसमें शादीशुदा जानी और गैर शादीशुदा जानी की कोई तखसीस है? आप बता दें अगर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोहतरम। नहीं, मुझे तो आयत यहाँ नजर नहीं है। अगर आपके पास आयत है तो मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा होगा। मुझे चेक करें जरा। तो गौरव फिक्र करते हैं ना मिलजुल के भाई। हाँ, गौरव फिक्र करते हैं, कोई आपसे मुनाजरा नहीं हो रहा, रैंडम बात हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो जिना है, ये शादीशुदा जानी और गैर शादीशुदा जानी की कोई तखसीस है कुरान में? यहाँ मुझे जो मिला है ना, मुझे नहीं मिला है। अगर आपके पास है तो दे दें। आपको नहीं मिला, चेक करें भाई। हैप्पी साहब, आप चेक करके बताएं, ये अपने चौधरी साहब को मदद करें यार। या एक मिनट, मैं जरा जी जी, क्या कह रहे हैं आमिर साहब? ओए थे कमारे बड़े बच्चे ने कोई त्याती करे। अच्छा, नहीं, जानी कुरान में एक ही जानी का बयान हुआ है या शादीशुदा और गैर शादीशुदा जानी की कोई तखसीस लहदा है? ये सवाल है। आप बता देना। हम तो, मैंने तो कह दिया कि जानी चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, यहाँ कहा ही नहीं है। जो भी जना करेगा इस किस्म का, उसके लिए ये सजा है। नहीं यार, मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। दूसरा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बारिश हो रही है। अभी देख लेते हैं आमिर साहब। चले, मैं देख लेता हूँ। शादी नाजरा नहीं कर रहा, आपको कोई जिक्र नहीं कर रहा, झूठा नहीं कर रहा। जानना चाह रहा हूँ कि कहीं कुरान में चेक करें, हाँ शादीशुदा जानी और गैर शादीशुदा जानी की। अच्छा, यहाँ शादी का एक लफ्ज़ है, लेकिन मसला ये है ना, शादी के लिए कोई लफ्ज़ अरबिक में है क्या कुरान में?
कुरान में तो निकाह का लफ्ज़ है। चलो निकाह वाला, निकाह शुदा या जो भी है कुछ है सही। चले निकाह निकाल लेते हैं, क्योंकि निकाह निकालना मुझे पता है रजम की सज़ा जो बंदरों से सीखी गई है, यार माफ़ करना मैं कहना नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं, वो किसी ताबी का कौल है, वो हमारे लिए हुज्जत है, उसको छोड़। अच्छा, वो कोई शरीयत नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है ये 24 की 3 की बात कर रहे हैं खान साहब। यार यहाँ शादीशुदा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यन की हो जहाँ पे आया है ना, शायद वो निकाह वाले की बात कर रहे हैं। हाँ 24 की 3 को देखें जरा। 24, अरे ये तो कुछ और है। यहाँ लिखा हुआ है जानी, वो ऑलरेडी जानी है, वो कभी भी निकाह नहीं करेगा जानी और मुशरिका के साथ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ इसी की बात कर रहे हैं। तो वो तो निकाह से पहले ही जानी है, और निकाह के बाद भी वो कह रहे वो जानी ही होगा, क्योंकि कह रहा है ना अज़ानी ला यनकिहु इल्ला जानियतन औ मुशरिकतन। और बात है कि जानी जो है उसका निकाह जानिया से और मुशरिक का निकाह मुशरिक, वो अलग बात है। नहीं, आपके पास अगर जिया रसूल भाई के पास कोई आयत है तो वो दे दें, कोई वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेंगे। ये सजा है क्या जानी की? कुरान में सजा है क्या जानी? वो कह रहे उन्होंने कहा कि इतने कोड़े कुरान में लिखे हुए जानी ये अपना अगर इजाजत दें जिया साहब थोड़ा जा नहीं कि तो जिस तरह इन्होंने जिस तरह आमिर साहब ने पहले इनके यहाँ क्या वही ये कोड़े हैं या कुछ और है? नहीं, जिस तरह मैं जो थोड़ी सी बात उनकी समझ पाया हूँ, आमिर भाई भी थोड़ी सी उतनी समझ पाए हैं कि ये जिस तरह आमिर साहब भाई ने मिर्ज़ा साहब की बीच में मिसाल दी है कि ये इसको आप जानी समझ रहे हैं, तो खान साहब ने कहा हाँ। अब जिस तरह आप लोग मिर्ज़ा साहब के साथ यहाँ पर दिन रात उनके जो है उनके साथ आप करते हैं ना, तो ये उनको उनकी सज़ा आप दे रहे हैं। अच्छा, ये सज़ा कोड़े इसको कहते हैं? हाँ यही सज़ा है ना, क्या होंगे? यही कोड़े हैं जो डेली आप मारते हैं। ठीक हो गया। अच्छा फिर ऐसा करें, आप ये तो आपको भी जानी समझ रहे हैं ना, आपको कैसे कोड़े 100 मारते हैं दिन खान तक साहब? आपने ये वकास के खिलाफ आपने बराड लगानी है 100 दिन तक। इसकी सजा देना, अल्लाह के हुक्म पे अमल करें, अल्लाह के हुक्म पे अमल करें। अगर नहीं अमल करते आप खुद जानी होंगे। यानी कि एक चीज तो पता, जानी तो पता लग गई ना, शुक्र है अल्लाह का। बस हाँ, तो आप कब लगा रहे हैं वकास के खिलाफ बराड? वो आप पकड़ के दें, हम लगाएंगे। नहीं, इधर मर्जियों को हमने पकड़ा थोड़ी होता है, हम पकड़ के बैठे होते हैं मर्जियों को। जो आप कह रहे हैं ये उनकी सजा है। पकड़ के हम हाँ आप पकड़ के दे दे बस हम। नहीं भाई ये आपका काम है ना। अभी तो आप कह रहे हैं जो कादियानियों के साथ हम करते हैं यही कोड़े हैं। यही आपने करना है। डॉक्टर साहब मेरी गल सुनो, एक मिनट आसफ भाई, नहीं हैप्पी साहब देखें, बात असूल की आपने खुद कहा है कि हम जो कादियानियों के साथ करते हैं यही है कोड़ों की सजा। मेरी गल तो सुन लो, मैं दसन लगा ना कि कुछ अरसा पहले महीना 1.5 महीने ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੋੜੇ ਫੇੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕਾਸ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫੇਰੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋੜੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਾਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਓ ਨਾ 100 ਹੁਣ ਜਿਆ 100 ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? और नहीं जिया ने फतवे ने मुताबिक नहीं ना कोड़े लगने हैं। अच्छा जिया भाई आप एग्री तो हो गए ना? यार देखें, अल्लाह के हुक्म के नफूज में देर नहीं करनी चाहिए। फौरी अल्लाह का हुक्म नाफज करें, बिस्मिल्लाह करें, अभी बराड़ जाके लगाएं वकास के खिलाफ। और ये 100 का भी तयन कर दे कि 100 दिन इसने फतवे ने 100 दिन लगानी है या 100 गालियां निकालनी है, क्या करना है ये भी तयन करें। और यार मैं इसको ये आसिफ भाई बैठा हुआ है, मैंने आप 100 बोल रहे हो, मैंने 200-400 लगा चुका हूँ उसको मैं। क्या 400 लगाई? क्या 400? आप नहीं तजावुज कर दिया ना, फिर तजावुज कर अच्छा ये अब्दुल्ला भी गवाह है। एक मिनट जिया भाई आपने अभी कहा यार जिया भाई अब सुन चले ना, जो अल्लाह के हुक्म के अलावा इसमें शामिल करता है जिया भाई ले नहीं रहे हैं, जिया भाई वो है शिरक और मुशरिक भी जानी है। तो अभी आपकी बारी है, अब आपको कौन लगाएगा 100? अब देखो जिया भाई मुझे 100 कोड़े लगाए। सुन लो आप लोग जो करतूत कर रहे हैं ना, दिन रात आपको कोड़ों से ही नहीं फुर्सत मिल रही। देखो ना, आपने काला कौवा बनाया और आपने अल्लाह के ऊपर लगाया। क्या मजाक है? अल्लाह का हुक्म है, आप मजाक कर रहे हैं आगे से। तो मजाक कर रहे हो ना? अल्लाह का हुक्म नहीं है कि भाई 100 कोड़े मारो। वो तो आप सामने आओगे, देखो कैसे लगा रहा हूँ मैं। कोड़े उसको मारने जिसने ज़िना किया, ये आपके वकास ने किया कल ज़िना। देखो
وہ تو جب سامنے آئے گا بات کلیئر ہوگی نا. سامنے آئے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سامنے آئے گا ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر دیکھو یہ قادیانی ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو کوڑے مار رہے ہوتے ہیں یار سن تو یہ سامنے آتے ہیں سن تو لو نا, ایک دوسرے بیچ میں نہیں بولیں گے. جیسے آپ کو کوا سمجھ میں نہیں آیا ہے اس طرح ان کی باتیں آپ کو خان سمجھ صاحب میں نہیں آپ آئیں کو گی. تو آ گئی ہے نا سمجھ, وہ ہمیں نہیں, پھر آپ بار بار آپ کو نہیں آ رہی ہے, آ گئی ہے نا. دیکھو ہمیں آ آپ گئی کو ہے. تو خان صاحب آ گئی ہے نا, آپ کیوں نہیں مارتے کوڑے اس کو؟ بول لیا آپ نے, میرے بیچ میں نہیں بولنا کیونکہ اس طرح نہیں بیچ میں کہ پہلے اللہ دے حکم نو نافذ کرو پھر گل کرنا, نہیں تو تسو آپ زانی ہو. ہاں جی اچھا جی دیکھیں بالکل اگر یہ حکم نہیں مانتے اللہ کا کوڑوں والا جو کتاب ہمیں کہتی ہے کتاب جو ہمیں کہتی ہے ہم کریں گے. پھر ضیاء بھائی ایک اور بات, انہاں نو دسو بھی تہاڈے تے زانی ہونے دا فتوی لگ گیا جی. ضیاء بھائی ایک اور بات انہوں نے کہا, اچھا جی ضیاء بھائی انہوں نے کہا کہ زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو, یہ ہر وقت ان کے پاس پھٹک رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو غور سے دیکھیں جن کو یار بات, اب مجھے بھی تو بات کرنے دو نا عبداللہ, بات کرنے دو نا یار, اب بات کرنے دو نا, بات آپ بیچ میں بول دیتے ہو. اب دیکھو ہن جتھے بیٹھے ہن دوویں جنے کٹے نا دوواں نو کوڑے مارنے نے. اچھا دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں. اب دیکھو یہ جو کالا کوا لیتے ہیں, کالا کوا صحیح ہے اسی طریقے سے جن کو کالا کوا سمجھ میں نہیں آیا اسی طرح ان کو ہماری انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کو تو آئی ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں خان صاحب آپ نے اپنا کانسیپٹ سارا کلیئر کر کے بیان کر دیا کہ اس زانی کے 100 کوڑے بنتے ہیں. خاموش ہو جائے ایک منٹ, سارے خاموش ہو بھائی کیوں خاموش ہو؟ عامر صاحب 100 کوڑے مرواؤ انہوں اللہ دا حکم نافذ کرواؤ. یار گل سمجھن دو, مینوں گل سمجھن دو. اپنا کیا نام ہے خان صاحب, یہ سورہ نساء کی نا آیت نمبر 15 اور 16 نکالی. یار میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میں نے دیکھا چلتے چلتے, اس میں جو سزا بیان کی گئی ہے یہ بھی زانیوں کی سزا ہے, زنا کرنے والوں کی. تھوڑا بتائیں نساء کی, بتائیں اس کا کیا یار ایک منٹ مجھے سورہ نساء کی 15 اور 16 نمبر آئے. مجھے ذرا ایک منٹ میں نکالتا ہوں. یار رولا نہ پاؤ, مچھی منڈی نہ بناؤ, وہ نہ کچھ سمجھن دو گالو بڑے وڈے یار رام بالکل رام جی میں کل چھوٹی جی کر لا عمر بھائی. عبداللہ جی لونا تو کر لے. ایک اللہ کا ایک واضح حکم ہے 15-16 یہ خان. اچھا عبداللہ کر جتی اللہ کا ایک واضح حکم ہے کہ زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو. ان کے مطابق ابھی ہیپی, آصف چودھری, یہ سب زانی ہے, وقاص زانی ہے. ہاں تو یہ ابھی اللہ کی آیت کے مطابق آپ زانی ہو گئے نا, کیونکہ آپ ہمارے پاس پھٹکے ہوئے ہیں. ہم پہ نہیں لاگو ہوتی, پورا یہ آپ کی اپنے پہ لاگو نہیں ہے, ہم پہ نہیں ہوتی لاگو. مشرک نہیں, اس قرآن میں نہیں ہے, اللہ کی اس بات کا انکار کر کے آپ زانی ہو گئے نا. پہلے وہ عامر بھائی جو پوچھ رہے ہیں وہ تو بتائیں نا. چلو عامر بھائی کی عامر بھائی جو پوچھ رہے ہیں وہاں پہ جو سزا بیان کی ہوئی ہے وہ زانیہ کی ہے یا نہیں, زانی اور زانیہ کی, وہ بتائیں ذرا. یار باقی چھڑو یار, مچھی منڈی نہ بنا دے عبداللہ, یار چھڑ دے, کوئی معمولی گل. اچھا جی ٹھیک ہے. شادی شدہ کے لیے کون سا لفظ ہے عربی میں تاکہ میں دیکھ. نہیں میں شادی شدہ کی نہیں بات کر رہا, میں نے پوچھا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر زنا کا جو حکم بیان کیا گیا, تھوڑا آپ بیان فرمائیں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے, آپ کیا سمجھے اس سے؟ دیکھیں یہاں تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بھی فاحشہ کرتا ہے نساء میں سے, نساءکم صحیح ہے, جو بھی فاحشہ کرتا ہے. یار اردو میں بات کریں خان صاحب, نساء میں سے فاحشہ کرتا ہے. ہاں من النسائکم, من کا لفظ ہے صحیح ہے نا, جو فاحشہ کرتے ہیں نساء میں سے, تم سب نساء میں سے فاحشہ کرتے ہیں. چودھری صاحب ایسا نو بولی بدلنی پڑنی ہے, نساء میں سے جو فاحشہ کرتے ہیں. خدا نذیر بھائی یہ دوبارہ ریپیٹ کریں, مزہ آ رہا ہے, دوبارہ ریپیٹ کریں, مزہ آئے گا. دیکھو دوبارہ میں بتا دوں, من النسائکم آیا ہے, من النسائکم, نساء تم سب کی نساؤں میں سے, نساء میں سے جو فاحشہ کرتے ہیں. نساء کا کیا مطلب؟ یہ سانو بھی دس دیو کی ہے, او تو پڑھنا سانو بھی آندا وا, واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, سانو بھی پڑھنا آندا. اے دا کی مطلب ہے وہ پوچھ رہے ہیں تہاڈے کو. اچھا میرے بچوں سن لو نا, میرے بچوں سن لو. اب دیکھو انہوں نے پوچھا کہ نساء کیا ہوتا ہے, اور ان کو میں نے ابھی بھی کہا کہ قرآن میں مترادف الفاظ یوز ہوتے ہیں. اب انہوں نے پوچھا نساء کیا ہوتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے.
اب دیکھیں نساء کیا ہوتا ہے، سورہ نساء ہی کی 3 آیت دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ۔ اب دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پس نکاح کرو۔ کس کے بارے میں خوف ہو؟ یتامہ کے بارے میں۔ یتامہ کے بارے میں خوف ہو تو تم نکاح کرو، صحیح ہے، من النساء۔ اب غور سے سنیے گا میری بات ہو رہی ہے یتامہ کی، یتامہ سے ناانصافی کی، اور اس یتامہ میں میل فیمیل دونوں آتے ہیں، صحیح ہے۔ اب لکھا ہوا ہے یعنی ان میل فیمیل جو یتامہ ہے ان سب کے ساتھ اگر آپ کو خوف و انصاف نہیں کر سکتے میل فیمیل، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو جو تم افورڈ کر سکتے ہو اپنے لیے وہ نساء میں سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان سب کے ساتھ۔ تو کیا یہاں جو مترجمین جو آپ نے ترجمہ کیا ہے تو کیا لڑکوں سے بھی نکاح ہوگا؟ کیونکہ یتامہ میں لڑکے بھی آتے ہیں، تو یہاں اللہ پاک مترادف کے طور پہ یتامہ کو نساء کہہ رہے ہیں جو معاشرے میں تنہا رہ جائیں، جو علمی یتیم ہو۔ اب آپ غور سے دیکھیں اس ترجمے کو دیکھیں، یتامہ میں یار مجھے بولنے دیں پلیز، تھوڑا آہستہ سے بات کریں، کوئی بندہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا، آواز ہلکی رکھ یار میں بس وہ ہو جاتا ہوں نا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا شولہ بیانی نہیں کرنی، ہاں یار آپ عادی ہو جاؤ گے انشاءاللہ، جب آتا رہوں گے نا آپ عادی ہو جاؤ گے۔ چل وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم سب کو خوف ہو کہ تم سب انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہی ترجمہ لیتے ہیں تو یتیم میں تو میل فیمیل دونوں یہاں ڈسکرائب ہو رہے ہیں، یتیموں دونوں آ رہے ہیں، تو جب نکاح کا کہا جا رہا ہے تو یہاں جو نکاح ہے تو پھر جو میل جو ہو گئے میل، اگر آپ نساء کو یہاں عورت جنہوں نے عورت لیا ہے تو جو میل ہو گئے وہ تو وڑ گئے، وہ کدھر گئے؟ تو بھائی یہاں جب کہا جا رہا ہے فَانْكِحُوا، ان سب سے نکاح کرنا ہے، کوئی تخصیص نہیں ہو رہی ہے، فَانْكِحُوا، اسی